worship the Lord. We are because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your ghost, for your presence in our lives. We're here because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much. And we just want to thank you for all you've done for us. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords.
केवल आप ही की स्तुति आराधना करते पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, हम धन्यवाद करते पिता आपने हमें संभाला है पिता। हम धन्यवाद करते पिता आपने हमारा उद्धार किया है पिता, आपने हमें नरक की आग से बचाया पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति का आपकी आराधना करते हैं और आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। Jesus Christ, crucified, bled and died to save our lives. Giver of boundless love, faithful one, to you
just thank you. Let's worship the Lord. आइए परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे हम Let's think about His greatness. और उसके महानता के बारे में सोचेंगे आज। Our worship is not emotional. और हमारा जो स्तुति आराधना ऐसे इमोशनल नहीं है, Lord, it's with spirit and truth. और ये हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं प्रभु। Oh, let's thank you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के। Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद फिर से We worship you in spirit. आपकी स्तुति आराधना हम Thank आत्मा you से for the करते हैं। gift of the Holy Spirit in us. धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान के लिए हमारे अंदर। Lord, we thank you. प्रभु हम धन्यवाद देते So हैं that we could worship in spirit and truth. ताकि हम सच्चाई और आत्मा से आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं Thank फिर से। you that you are here in our midst. धन्यवाद प्रभु आज आप हमारे बीचों बीच हो Lord, you are walking in the middle of the church. और आप जो है चर्च के बीचों बीच चल रहे हो प्रभु Lord, आज, anything can happen. और कुछ भी आज हो सकता Lord, you can touch our heart. है और आज हमारे आप हृदय को छू सकते हैं Lord, प्रभु। you can heal a broken heart. आप किसी का भी हृदय जो टूटा है उसे चंगाई दे सकते हो प्रभु, Lord, you can humble us. और आप जो है हमें नम्र कर सकते हो प्रभु। Lord, we thank you. प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं, Lord, we thank you. धन्यवाद देते There हैं could प्रभु। be healing today. और आज ये चंगाई हो सकती है प्रभु It's आज, healing of the heart, और हाँ चंगाई जो हृदय का प्रभु, healing of the body, और जो हृदय का और जो शरीर का भी चंगाई हो सकता है healing प्रभु। of the soul. और हमारा जो जीव का भी जो है Lord, we just pray for that. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं We उसके। thank you, Lord. Thank you for miracles. धन्यवाद चमत्कार के You are a लिए, God who does और miracles. आप ऐसे परमेश्वर हो जो चमत्कार करते ही रहते हैं, Lord, we all can testify that. और हम इसकी सब गवाही है प्रभु। Lord, you are beautiful. और आप खूबसूरत है You are प्रभु, beyond the description. और आप वर्णन से भी बाहर हो प्रभु। Lord, it takes all my life to understand. how और ये great मेरा you पूरा are. जीवन लग सकता है कि आपको जानने के लिए प्रभु। Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, Thank you for being in our midst today. धन्यवाद हमारे बीचों बीच आप यहाँ पर Your पहुंचे। presence touches our hearts. आपकी उपस्थिति हमारे हृदय को छूते Your छूती है, presence fills us with a new power. और आपकी उपस्थिति हमारे अंदर नया सामर्थ्य ला सकती है, Lord, your power quickens us. और आपका सामर्थ्य हमें और ज्यादा जोशीले बना सकते हैं प्रभु। प्रभु It धन्यवाद। was a beautiful, beautiful morning. खूबसूरत खूबसूरत सुबह We दीजिए come प्रभु, in this worship with your और ये hands. पूरा स्तुति आराधना आपके हाथों में In देते हैं। Jesus' name. we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक वचन पढ़ना चाहूँगा प्रभु करने से पहला पत्रस का पहला अध्याय और वचन 19। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहाँ पर जो है पत्रस जो यहाँ पे पत्री लिख रहा है, वो जो है यहाँ पे हमारे छुटकारे के बारे में लिख रहा है कि हमारा छुटकारा किस तरह से हुआ। वो यहाँ पे मेंशन करता है कि वो एक निष्कलंक मेमने मीन्स उसमें कोई पाप नहीं था, और वो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो प्रभु भोज में जो हम याद करते हैं कि किस तरह जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा जो है उसने हमें छुटकारा दिया, हर एक पाप से, हर एक श्राप से जो है उसने हमें छुटकारा दिया है। तो प्रभु भोज जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है एक विश्वासी के जीवन में, क्योंकि वो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के किए हुए उस बलिदान को जो है याद दिलाते हैं। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु बहुत जो है हम याद करते हैं किस तरह प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो है उस क्रूस पर जो है लटकाया गया हमारे पापों के लिए, और उसने जो है उस क्रूस पर हमें याद किया। तो आइए हम रोटी लेंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो ये जो दाखरस है वो यीशु मसीह के जो है बहुमूल्य लहू को जो है दर्शाता है कि वो एक निष्पापी था, लेकिन वो पापी लोगों के लिए जो है उस क्रूस पर मारा गया, और केवल मारा ही नहीं गया लेकिन वो जो है तीसरे दिन जीवित हुआ। तो आइए हम ये दाखरस लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस
दिन के लिए धन्यवाद करते पिता, आपके बहुमूल्य लहू पिता जो हमें हर एक पाप से छुटकारा देता है। हम धन्यवाद करते हैं, हम आज उस बलिदान को याद करते हैं और हम आपकी महिमा करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च कि आप सबका स्वागत है कि वाकई आज का वर्शिप वाकई कुछ हम बहुत ही अलग स्तर में मैं खो गया था। मैं यही बोलना चाहता हूँ, उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आया रहेगा। इसके लिए वर्शिप टीम के लिए और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स है। 26 तारीख को जो है पिकनिक है ओवरनाइट। ओके, इसके बारे में अधिक जानकारी बाद में पास्टर किशोर भी बताएंगे। ओके, ओवरनाइट पिकनिक। ओके, फैमिली ऑफ द वीक पवन पांडे और उसके फैमिली। उनके खास तौर से पवन जी का जो बेटा है आदित्य, उसका ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना निरंतर करते रहिए। आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। ओके, और ये सब जो बर्थडे है इनको आप जरूर आप जो है 2 किशोर जी दिख रहे इधर। ओके 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 ओके, बड़ा पार्टी तो जरूर इनको विश जरूर कीजिए। ओके, और ये बाइबल कॉलेज का क्लासेस के बारे में और इसके बारे में कई बार बोल चुका है हम सब। ओके, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अभी भी 350। ओके, अभी भी 350 है। ओके, छूट अभी भी है, तो 350 का पूरा फायदा उठाइए। ओके, धन्यवाद। चलो, और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर नहीं आते, मतलब जो घर से जो सभा देखते यूट्यूब के द्वारा, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब तो आप किए रहेंगे और उसमें लाइक बटन्स दबाते रहिए और फिर चैनल के बारे में अधिक से ज़्यादा जानकारी दूसरे लोग को भी दीजिए, ताकि हम लाइव सर्विस जाने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। ओके, ताकि हम लाइव भी जा सकते हैं। ओके, आप भी बटन दबाते रहिए। कभी भी आप कुकिंग का चैनल तो आप लोग दबाते ही रहते कभी भी। ओके, ज़्यादातर मैं GGF का ही देखता हूँ, कुकिंग और या फिर क्राफ्ट्स ये सब। ओके, क्यों ना हम इसके लिए लाइक्स बटन, कमेंट्स भी अच्छे कमेंट्स दीजिए। ओके, तो आइए अभी मैं दान के विषय में बोलने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, दान कल वाकई न्यू ईयर पार्टी अभी तक मेरे लिए ख़त्म नहीं हुआ। पिछले रात भी मैं किसी के घर में था, वाकई बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। आप लोग मुझे देख सकते हो, मेरा शेप बिगड़ता जा रहा है अभी। आई डोंट नो मैं अभी भी कब मैं डाइट पे आऊँगा। कुछ कोशिश करता हूँ कम से कम 6-7 किलोमीटर चलने, लेकिन शाम को वापस वो बैगेज आ जाती है कि मेरा शेप इतना बहुत ही। ओके, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या इस नए साल में दान के विषय में बोलूँ, और परमेश्वर कितना भला है। और जब मैं रात को घर पे गया तो फ्रेश हुआ, तो फिर हम लोग डिवोशन में बैठे, फैमिली प्रेयर में, उसी में परमेश्वर सुना दिया। फिर सुबह उठा, फिर बाद में मैं ऐसे नहीं कि मैं पहले संदेश तैयार किया, फिर बाद पहले स्थान जो है मेरा पर्सनल है। ओके, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आई वांट टू से सेकेंड। फिर मैं पूरा जैसे मेरा डिवोशन चला, फिर बाद में मैं परमेश्वर को कुछ ख्याल रखा था परमेश्वर ने, और फिर बाद में बहुत ही अच्छा ख्याल मुझे दिया है, वही मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं जो है मत्ती का 6वां अध्याय वचन 21वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल वचन है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। स्वर्गीय पिता, आशीष दीजिए इस वचन को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्यों जो है एक धन जो है सबके लिए बहुत ही मायने रखती है, ये आज का टॉपिक है। हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हम दान इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें कुछ वापस चाहिए। ओके, वापस लेने के लिए तो कोई नहीं देते चर्च में, हम देते हैं क्योंकि ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवनों से वो लालचीपन जो है वो निकाल लेने के लिए। ओके, इसीलिए परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। ओके, वो इतना हमें एक जरिया बनाया है, इस दान के अनुसार जो है हम एक सेवा कर सकते हैं परमेश्वर का। हमें परमेश्वर ने एक जरिया बना के हमको बोला है कि देने के लिए।
दान देने के बारे में दो चीज बोलना चाहता हूँ। दान देने का मतलब जो यीशु को देना है वो एक सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल, हम उसका सब फॉलो करते हैं, हमें देना ही है, वो परमेश्वर का है। दूसरा क्या है कि हम एक भंडारी है, जो भी हमारे पास है वो सब काम भंडारी है। भंडारी का मतलब स्टीवर्ड, ओके, मतलब हम हमारे पास जो कुछ भी है, भले ही हमारे पास जो घर भी नहीं है, जो भाड़े घर में भी रहते हैं, उसका भी हम एक क्या बोलते हैं, एक स्टीवर्ड, एक मैनेजर, एक रखवाल है, क्योंकि अगर एक खिला भी ठोकेगा बाद में उसका दंड तो हमें देना ही पड़ेगा। ओके, हम एक वाकई अगर ये सिद्धांत अगर एक विश्वासी नहीं समझ लेते तो बहुत ही तकलीफ हो सकते हैं, तकलीफ में हम लोग आ सकते हैं। ओके, क्योंकि किसी ने तो मुझे पूछा कि आप एक ईसाई जीवन में सबसे बड़ा चुनौती का कारण क्या समझते हो एक ईसाई के जीवन में, जिससे वो ईसाई तत्व जो है वो गिरता गिरता नीचे जा सकते हैं। मैंने तुरंत बोल दिया दान के विषय में। और जैसे समय बोलते गया और वो व्यक्ति को जिससे और वैसे सब जो है वो बोला कि वाकई ये फाउंडेशन है और इसके ऊपर ही पूरा ईसाईयत्व जो है हम बोल सकते हैं। क्योंकि आज भी जो हम इस साल में जो शुरुआत किए हैं और हमने पहला स्थान प्रभु को दिया है। ऐसा नहीं कि हम पिछले साल में जो है कोरोना के वक्त जो है हम लोग उससे पहले भी हम लोग शाम को आते थे, लेकिन ये कितना अच्छा है, कितने ताजे ताजे चेहरे, ओके, एकदम शिकायना ग्लोरी चमक रही है आपके। अपने पड़ोसी को बोलिए, पहला बोलिए, मेरे पास तो कोई नहीं, आपकी शक्ल में वैसा वो चेहरे पर वो है शिकायना ग्लोरी आ चुकी है। क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि पर्दा डालूं और तो कि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने ये इस न्यू ईयर में वाकई बहुत बड़ा रेजोल्यूशन हम ये करते ही जाएंगे। ओके, मॉर्निंग ये, और कुछ लोग नहीं आ सकते उसके लिए हमें प्रार्थना कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ट्रेन्स नहीं आने की वजह से हम उसके लिए प्रार्थना करते ही रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जो है अगर पहला स्थान नहीं देते, अगर समझो परमेश्वर को ईसाईयत्व, जैसे कि हम मरियम और मार्था का एग्जाम्पल देखते हैं कि मार्था जो है वो बहुत व्यस्त है और वो बहुत गुड़गुड़ कर रही है ना। उसने वो सोची कि परमेश्वर को उसके भोजन से लगा हुआ नहीं, और मरियम ने वो सही जगह चुन लिया, उसने पहला स्थान। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते तो परमेश्वर को हम परमेश्वर का सा स्थान देते है ना। मरियम ने वो एहसास दिलाया परमेश्वर को जब उसके घर में आए, क्योंकि उसके लिए वो महत्वपूर्ण था, है ना। इसीलिए हम देखते कि क्योंकि जहाँ पर तेरा धन है वहीं पर आपका मन भी लगा रहेगा। हमारा कहाँ है ये हमें सोचना है आज, कहाँ पर हमारा मन है। और प्रभु का तब कार्य करता है जब परमेश्वर वचन बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन इस तरह कार्य करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि आप हाथ रख के प्रार्थना करो। हम कभी कभी हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब तक हम हाथ रख के वो प्रार्थना नहीं करेंगे उस व्यक्ति का जीवन में आशीष नहीं आएगा। क्योंकि ये उसी तरह है, जब तक मूसा जो है अपने हाथ उठाकर लाठी नहीं उठाए तब तक वो लाल समुद्र दो भाग नहीं हो गए। ये महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर जो बोलते हैं वो करना इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट एंड बेस्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस ऑफरिंग मैसेज के बारे में। मैंने आज सुबह रेजोल्यूशन बनाया पास्टर, कैन आई डिक्लेयर? ओके, ये दान के विषय में ही है। ओके, और मैंने ये रेजोल्यूशन जो है बोलने से पहले मेरे परिवार को बोला और बोला कि मैं ये रेजोल्यूशन मैंने बना दिया, ये इरादा, रेजोल्यूशन का मतलब इरादा मैंने बना दिया है और ये हम पूरे साल करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे इसमें। तो मेरे फैमिली मेम्बर ने बोले कि आप ये कैसा कर रहे हो, आप ये बोलना नहीं चाहिए। मैं बोला कि बोलने से किसी का लाभ हुआ तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया। तो आज दोस्तों, आज सुबह मैं 6:21 में मैंने रेजोल्यूशन बनाया। तो ये साल से नया रेजोल्यूशन ये है कि मैं 10 मार्च नहीं दूंगा अभी से, मतलब 11% दूंगा। तो आप सब भी ये जो है आप इसको अपना सकते हो, क्योंकि मैंने जो आज्ञा दिया है हमें उससे बढ़कर देना चाहिए, है ना। 11% अच्छा है ना।
थोड़ा फर्क, ओके, ये रेजोल्यूशन है। तो ओके, नेक्स्ट ऑफरिंग मैसेज में मैंने और एक रेजोल्यूशन पास्टर बाबू बोला, 12%. नहीं, उससे बढ़कर नेक्स्ट रेजोल्यूशन में मैं और एक रेजोल्यूशन में बोलने वाला हूँ, तो इट्स कमिंग अप सून, ओके, थैंक्स। Princes and paupers, sons and daughters, kneel at the throne of grace. Losers and winners, saints and sinners, one day will see His face, and we all bow down. Kings will surrender their crowns and worship Jesus, for He is the love, unfailing love. He is the love of God. Summer and winter, the mountains and rivers whisper our Savior's name. Awesome and holy, a friend to the lowly, forever His love will reign, and we all bow down. Kings will surrender their crowns and worship Jesus, and worship Jesus, for He is the love, unfailing love. He is the love of God. Okay, and turn in your Bibles to 1 Samuel chapter 3 पहले सैमुअल का तीसरा अध्याय खोलिए, and verses 1 onwards to verse 10. पहला वचन से तीसरा वचन, पहला से तीसरा। Okay, verse 1 to verse 10. Now the boy Samuel was ministering to the Lord before the Eli, and the word from the Lord was rare in those days, and visions were infrequent. वह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करते हुए उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। It happened at that time as Eli was lying down in the place. Now his eyesight had begun to grow dim, and he could not see well. And verse 3, and the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आँख तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान पर लौटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। Verse 4, that the Lord called Samuel, and he said, Here I am. और अब वचन 4, तब यहोवा ने शमूएल से पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? Then he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call. Lie down again. So he went and lay down. तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा है? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला कि मैंने तो नहीं पुकारा, फिर जा, लेट जा। The Lord called it again, Samuel, Samuel, arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he answered, I did not call, my son, lie down again. तब यहोवा ने फिर पुकारा, हे सैमुएल, सैमुएल, उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा, लेट जा। Now Samuel did not yet know the Lord, nor had the word of the Lord yet been revealed to him. So the Lord called Samuel again for the third time, and he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me.
Then Eli discerned that the Lord was calling the boy. उस समय तक सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुअल से पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे क्यों पुकारा है? And Eli said to Samuel, Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you shall say, Speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेटर आ, और वह यदि तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, क्या कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। Then verse 10, Then the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servant is listening. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुअल, सैमुअल। सैमुअल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। Okay, one more verse from Psalm 16. और एक वचन भजन संहिता 16। Okay, this is God speaking to you and me. और ये जो है परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। Okay, it says, As for the saints who are in the earth, that is you and me. Verse 3. वर्ष 3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, जैसे कि हम सब हैं, They are majestic ones. वे ही आदर के योग्य Isn't हैं। that amazing? God calls from heaven, You are majestic ones. ये अद्भुत है ना वचन कि हम सब आदर के योग्य पर। Then it goes on to say, In whom is all my delight. और उन्हीं में से मैं प्रसन्न रहता हूँ। Isn't that amazing? है ना अद्भुत है वचन? Maybe you came this morning, maybe 2020, people said they are not delighted with you. और हो सकता है 2020 में वो बोलेंगे हम आपसे प्रसन्न नहीं है। But today God in the beginning of the year says, look at those people on the earth. और आज परमेश्वर बोल रहे हैं, उन लोगों को देखो, They are majestic. और बोलते कि आप वाकई योग्य हो। And in whom, I like the word, in whom all my delight. और उन्हीं में से मैं प्रसन्न रहता हूँ। इस तरह Like परमेश्वर, God's one delight is you. और कि परमेश्वर का एक जो है आदर के हम है। Isn't that amazing? है ना, Is that okay. verse is like we just close the service and go away from और it. ये वचन हम बोल के ही बंद कर सकते हैं सभा। Okay, so let's pray. Father, we just thank you. We praise you, Lord. Bless this portion for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Like, how many of you enjoyed the worship today? और कितने जन को वाकई स्तुति आराधना पसंद है? Okay, yes, it was really anointed. और बहुत ही अभिषेक से भरा Okay, I हुआ was था। thinking, when they were practicing, the mic stopped working. और जैसे कि मैं सोच रहा था, जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो माइक जो है बंद हो Okay, गया था। and I told them, go and confess your sins. मैं जाकर बोला अपने पापों का प्रायश्चित करो। And they did it, and they came back, and mic started working. और वो लोग ने उसी तरह किया, फिर माइक चालू हो गया फिर से। You know that this is amazing. और ये अद्भुत है। If something is not working, go back behind. That's why we put the screen here. और कुछ काम नहीं कर रहे तो इसी तरह स्क्रीन के पीछे जाने की Okay, जगह and रखा। confess your sins. अपने पापों का प्रायश्चित And करो come back, and things would work. और वापस आओ, फिर देखो काम सब Okay, I बराबर also है। want to lay some important request to everybody. और मैं और भी किसी को सब लोग के लिए निवेदन Okay, बोलना it's been चाहता हूँ। 7 years we invested on these things, और on जो- the music equipment. और जो है 7 साल हो गए ये सब म्यूजिक सिस्टम के ऊपर भारी Okay, खर्च and किए they started coughing and sneezing. और वो सब अभी थोड़ा सा जुकाम होने लगी ये सब। Okay, and we want to really invest in good mics. और अभी वाकई जो है हम अच्छे माइक में जो है Okay, पैसे लगाना and चाहते हैं also other equipment. और भी Okay. दूसरे भी चीजें Okay, लेना चाहते हैं। pray in your heart if God puts in your heart, apart from your offerings, tithes, missions, and you want to say, God, I want to give to buy this new music equipment. और Okay? आप प्रार्थना कीजिए, अगर समझो दान दशमांश और जो भी मिशंस का भी सपोर्ट को छोड़कर अगर परमेश्वर आपके हृदय में डालते हैं कि मैं इसके लिए सपोर्ट करना चाहता हूँ तो आप Okay, बोलिए। you can either speak to me or Christopher. Okay, so और- and we would like no, you can direct. We would direct you what to do it. और Okay. आप जो है पास That's किशोर ने amazing. तो क्रिस्टोफर से बात कर सकते That's हैं आगे। amazing. Okay. So Chandra made a resolution today. तो मैंने रेजोल्यूशन तो इरादा I don't know बना about his resolution. I like the other point that he said. I convinced my wife. That's a good thing, huh? That's amazing. इरादा जो है मैंने मेरे परिवार में मेरे पत्नी को That's मैंने really happening something. Okay. It's amazing.
convincing your wife is really a hard job. और जो है पत्नी को Okay, husbands are really shaking their heads. No, it's true. और कुछ बातें जो है परिवार में वाकई सम्मति लेने के लिए बहुत ही मुश्किल रहते कभी कभी। Sometimes we need to just do many things. Isn't that Kiran right? Or that's it? He's still convincing his wife. Okay, let's go into the message. Okay. Today we begin a brand new series of messages. और आज जो है नए संदेश का श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। Okay, and these messages are very fresh. और ये जो बहुत ही ताजा संदेश है। Okay, and I don't know how long I would go on this series. मुझे मालूम नहीं कि ये संदेश का श्रृंखला में आगे कितना। Okay, I titled this series as Voice. और जैसे कि संदेश का श्रृंखला इस तरह रखा हूँ, आवाज, Okay, vision, और जो दर्शन, and then the values. और फिर बाद में जो कीमत। Okay, so again I say there's a voice. और जो वहाँ पर आवाज है। And there's a vision of God. और जो है वहाँ पर परमेश्वर का दर्शन है। And there's also values or convictions about who God is. और जिसके उसका एक मोल है कि परमेश्वर कौन है उसके बारे में। So today as a believer, you want to be effective as a believer. तो आज एक विश्वासी होने के नाते हम उस स्तर में रहना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए। Okay, if you want to be effective. अगर आप जो है वाकई उस तरह रहना चाहते हैं इफेक्टिव। Okay, two important questions need to be answered by you. दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना है। Okay, number one, who am I? और पहली बात तो ये कि मैं कौन हूँ। Whom I belong to. और मैं किसका मैं हूँ। Okay, this is a very important question. Who am I? और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कौन है मैं। Okay, maybe you know who am I right now, but it's a question that we need to search for all eternity. हो सकता है हमें मालूम है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये पूरा अनंत काल के लिए जो है इसका जवाब हमें ढूंढना Okay, the चाहिए। second question is who is my boss or whom I serving? और या फिर दूसरा सवाल ये है कि कौन है मेरा मालिक और किसका मैं वाकई सेवा कर रहा How हूँ। many believe these are very important questions? कितने ने ऐसा विश्वास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। Okay, the Christian's first priority in his life. एक ईसाई का जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये है Okay, to answer these two questions. कि उसको उत्तर देना है ये दो Because सवालों का। everything that he does in his life is dependent on these two answers that he obtains from God. क्योंकि हर एक चीजें वो करते हैं वो जो है ये इससे ही उसको है ना जवाब मिलते हैं When it परमेश्वर से। comes to master, जब जो है स्वामी के पास आते हैं। Jesus said in Matthew 6:24, Jesus said, "No man can serve two masters." और यीशु ने बोला कि दो स्वामी का कोई भी जो है सेवा नहीं कर सकते। And in fact, he said it's impossible to serve two masters. और जो है उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये कठिन है कि आप दो स्वामी का Okay, सेवा of कर course, सकते हो। here he's talking about Jesus and like now God and money. और यहाँ पर यीशु तो यहाँ पर यो खुद के बारे में, यीशु के बारे में और फिर पैसे के बारे में सेवा करते Okay, but it's हैं। amazing. God, like Christ, made things like it. और जैसे कि मसीह ने जैसा है उसी तरह बोला है। I like Jesus didn't mince the words. और मुझे एक बहुत पसंद आता है कि यीशु मसीह जो है वचनों को एकदम कठिन समझने के लिए नहीं बनाते Now he made it easy. और बहुत आसान तरीके से बोलते हैं Now just seek ye the kingdom of God first, all things would be added to you. कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो ताकि सारी चीज आपको मिल जाए। If you want to follow me, leave your father, your mother, everything and follow me. We talked about discipleship. अगर समझो मेरे पीछे होना है तो आप अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर मेरे You पीछे can't हो। serve two masters. Either you're going to serve me or you're going to serve the things that you love. या आप जो है दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हो, या तो आप जिससे प्रेम करते हो उसका सेवा करोगे, नहीं तो मेरा नहीं। I like that, isn't it? मुझे पसंद आते हैं। Like whose coin, whose image is in this coin? कि मुझे भी पसंद आते हैं कि उस सिक्के पर किसका Oh, it's the image of the emperor. Then give it to emperor what belongs to you, and whose images you possess. और जो है उस सिक्के के ऊपर राजा का है तो राजा को दो, लेकिन हम सब के ऊपर किसका तस्वीर Like है? Bible says, you and me are created in the image of God. कि बाइबल कहती है कि हम सबको जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप So में give बनाया। it to your life to Jesus. तो परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। That's what Christ made things very easily. इसीलिए मसीह ने जो है वे हमारे जीवन को Okay, बहुत when we आसान कर open the दिया। scriptures, जब हम वचन को खोलते okay, हैं it's not difficult. और ये जो है कुछ तकलीफ नहीं है Okay, उसमें। this is a book for a common man. और ये जो किताब जो है कोई भी साधारण व्यक्ति Okay, a man could sit on the street and read this book and his life could be changed. और कोई भी व्यक्ति सड़क पर बैठकर ये किताब पढ़कर उसका जीवन बदल सकता That's है। amazing. अद्भुत है। So let's go into the first question that we posed today. और जो है पहला सवाल की तरफ जाएंगे जो हमने अभी तक Okay, and Psalm 16 verse 3 we said like God says,
my source of delight is you and me. और कि परमेश्वर बोलते हैं जैसे कि भजन संहिता 16:3 में कि मेरा जो भी स्तुति है वो आदर आप ही है। That's I like that, isn't it? और ये मुझे बहुत Like पसंद God है। didn't say my source of my delight is the beauty of the mountains. और जैसे कि परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते कि खूबसूरत पहाड़ है वो मेरे आदर के योग्य है, इस He तरह नहीं didn't बोलते। say like the seas and the lakes are my desire. वो इस तरह भी नहीं बोलते कि वो समुंदर वो नहर वो सब मेरा जो है मैं But उससे God प्रसन्न sits in हूँ। the heaven in the throne and says, my delight are these people right on this earth. और जैसे कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर बोलते कि मेरा जो भी रुचि है आप सब है। That's amazing. When we read the verses, we understood what God thinks about you and me. कि ये बहुत आसान है कि जो भी हमने वचन पढ़ा वो परमेश्वर क्या सोचते हैं हमारे बारे में वो बातें। Zephaniah 3:17 also relates the same verse again. जफन्याह का 3:17 में भी यही वचन वापस बोलते हैं। He says he takes great delight in you. वो बोलते हैं कि इसमें बहुत प्रसन्न होते हैं हम सब में वो। Look, and he also says he loves you. और भी बोलते हैं कि वो हमसे प्रेम करते I हैं। like in Zephaniah 3:17 says he rejoices over you with singing. और ये बहुत ही पसंदीदा वचन है मेरा भी कि जफन्याह का 3:17 कि वो हम पर गाना भी गाते हैं। I like that, isn't ये it? बहुत ही Like पसंद है। God in heaven and says, angels, come on, और- let's sing for our people. और परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो अपने स्वर्गदूत को बोलते चलो हम अपने लोगों के लिए गाना गाएंगे। Okay, that's amazing. और ये अद्भुत है। Like we sing for birthdays, but how about singing for God, singing for you and me? और हम जो है बर्थडे के लिए गाना गाते हैं कि परमेश्वर कितना कि हमारे लिए गाना That's गाते हैं। beautiful, isn't it? खूबसूरत है ना। In the book of Jeremiah, the people have gone against God. और जो ये यिर्मयाह की किताब में देखते हैं कि लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध They गए went थे। far away from वो God. जो है परमेश्वर से बहुत दूर गए But थे। God gave them a promise there. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहां पर वादा दिया। Jeremiah chapter 31 verse 3. और यिर्मयाह का 31:3 में बोला I have loved you with an everlasting love. कि मैंने तुमसे जो है अनंत काल का प्रेम से That प्रेम means किया है। my love doesn't stop because you stop loving me. कि उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया तो मेरा प्रेम नहीं बन Like गया। God's love is everlasting. कि परमेश्वर का प्रेम अनंत काल And का है। then he goes on to see in verse 3, call unto me and I will answer and do great and mighty things in your life. इसीलिए तीसरा वचन में बोलते हैं कि मुझे पुकारो मैं जो है तुम्हें महान कार्य करके दिखाऊंगा। Like God created you and me in his image. कि परमेश्वर ने हम सबको उसके स्वरूप में Like when बनाया। we walk on the streets, जब हम सड़क पे चलते हैं, when we walk in our neighborhood, जब हमारे पड़ोस में हम चलते they हैं, didn't see Jesus, तो वो लोग को यीशु के बारे में मालूम नहीं, देखा नहीं, but they see you and me. लेकिन वो हमें देखते हैं। We have a neighbor. और हमारा एक पड़ोसी है, Okay, she's from Calcutta. वो कलकत्ता से है, Okay, they were idol worshippers. वो जो है मूर्ति पूजक है। But she knows that we are pastors and we study the Bible. और उन्हें लेकिन मालूम है कि पास्टर किशोर को देखकर कि वो पास्टर है और वो बाइबल पढ़ते Because हैं। many times every year we share the gospel in our building. क्योंकि कई सालों से जो है हम अपने बिल्डिंग में सुसमाचार बांट रहे हैं। Okay, this week for my son's birthday, we are calling some of them to my home, and I'm just preaching the gospel. और ये हफ्ते में मेरे बेटे का जो है जन्मदिन है, तो कुछ लोगों को मैं बुला रहा हूँ और सुसमाचार बांट रहा And हूँ। what's amazing is this lady came to us this week as I was entering my home I came back from the walk and I was entering the home. और जैसे कि मैं अद्भुत बात ये है कि ये औरत जो है मैं जब घर पे जा रहा था वो तभी वो दिखी, And she was in tears. वो रो रही थी। Pastor, dear pastor, like she says, like has a high respect, pastor. और वो जैसे कि सम्मान देते हुए बोली कि Okay, पास्टर, my baby is sick for many years, many months. और मेरे जो छोटी बच्ची है I जो went to every temple. बहुत ही दिनों से वो व्यस्त नहीं है और अच्छी नहीं है, और मैं बहुत सारे मंदिर में गई हूँ I also went to mosque. और मैं जो है मस्जिद में भी गई हूँ Like nothing happened. और कुछ नहीं हुआ है। I heard that you would pray and God heals your prayer, like God answers your prayers. और जैसे कि मैंने सुना है कि आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और And I like that, isn't it? We have the image of God. और ये बहुत पसंद आता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का स्वरूप है Like you are not just another person on this earth. और हम ऐसे ही कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है। And what's amazing is we prayed for them. I called my wife, we lay our hands and prayed for them. और जैसे कि फिर बाद में हम उनके पत्नी के साथ वो गए और प्रार्थना की। Like we walk on the streets and people see something that they don't see in other people. कि हम जब सड़क पे चलते हैं लोग ऐसा देखते हैं जो दूसरों में नहीं देख सकते। Like we have the image of God. कि हमारे ऊपर परमेश्वर का जो स्वरूप Like we don't है have the image of the devil. और कि हमारे ऊपर जो है शैतान का स्वरूप We नहीं है have the image of God. और हमारे ऊपर परमेश्वर का What स्वरूप I है। speak,
how is my countenance, how I talk is very important. क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं बात कर वो दूसरों को ये करता हूँ, ये सब Because somebody is watching my life, I am the image of God. क्योंकि कोई तो मुझे देख रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के I am स्वरूप में created बनाया in the image of God. मैं जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया Like when Jesus was on the earth, he told to one of his disciples, "You have seen me, you have seen the Father." कि यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में थे तो वो अपने चेलों को बोला, अगर तुमने मुझे देखा है तो पिता को भी देख लिया। And Christ today tells, "If you have seen my people, you have seen my life." और परमेश्वर जो है दुनिया के लोगों को बोल रहे हैं कि अगर मेरे लोगों को देखा है तो मुझे भी देख लिया। That's what we are. We have the image of God. और वही हम भी परमेश्वर के स्वरूप I will में। just put down like when God designed man. और जैसे कि मैंने कुछ लिखा है, परमेश्वर ने जब व्यक्ति को आदम को Like बनाया, I put down 4 things. I want this message. This was a very meditative message. और मैं चाहता हूँ कि ये I don't. I will ध्यान even से stop whenever I wanted to. और जो है मैं बंद भी करूंगा जब मैं बंद करना चाहता When हूँ। God designed man, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप Genesis में बनाया। 1:27 says, God created man in His own image. उत्पत्ति का 1:27 में बोलते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। Like he was created in His own image, so that man is made to worship God. अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें। We are not called to worship anything else. और हमें दूसरा और कोई भी चीजों का वो स्तुति We are not करने to के worship लिए a man. और हमें किसी मनुष्य का We are स्तुति not to आराधना worship करना the things of this world. और हमें इस दुनिया का भी कोई भी चीज का We are स्तुति not to आराधना be नहीं worship करना the money. और हम कोई भी पैसे का भी स्तुति We are आराधना created करना in the image of God to worship God. और हम जो है परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं तो उसका स्तुति आराधना करने के लिए That's बने हैं। amazing. That's one of the reasons you are here on this earth. और उसीलिए जो है हम एक कारण की वजह से So हम turn to your इस neighbor and say, I am created to worship God. और अपने पड़ोसी को बोले कि हम I सब am परमेश्वर created to worship God. और मैं जो है परमेश्वर को जो है स्तुति आराधना करने के लिए बुलाया गया हूँ। The second thing that God created in Genesis 2:15. और जो दूसरा कारण जो है उत्पत्ति का 2:15. 2:15 में बोलते हैं Okay, God took man and put him in the garden to cultivate. और परमेश्वर ने जो है मानव को आदम को लिया और फिर बाद में उस बगीचे का रक्षा करने के लिए रखा। Like second thing that God gave man is और responsibility. दूसरा चीज जो है परमेश्वर ने उसे जो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी। Okay, God is sovereign, by the way. God is sovereign. परमेश्वर सब कुछ जानता है Okay, it doesn't mean that God is sovereign, so I live like the hell on this earth. और इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सब अच्छे है तो मैं इस दुनिया में एकदम नरक की तरह जीता हूँ। No, when God is sovereign, it's also my responsibility to walk by faith. और जब परमेश्वर जो सबसे महान परमेश्वर है तो मेरे भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एकदम Yes, God is जिम्मेदारी sovereign everything in my life. और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मेरे जीवन में। Okay, it doesn't mean I do what I like to do. उसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करना चाहता हूँ वो ही But करूँ। God put responsibility in man. और परमेश्वर ने जिम्मेदारी डाला है मनुष्य में। And that's amazing. Yes, all things work together for good. हाँ, ये बात बराबर है कि सब चीजें जो है भलाई के लिए Yes, होती है even the bad things. और बुरे चीज भी। Doesn't mean I stand up every morning to do bad things. उसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह उठकर जो है गलत के लिए गलत काम Okay, but करता I हूँ। need to remember I will be a responsible believer of Christ, and I would say I want to walk by faith. और जो है मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक जिम्मेदारी से मुझे विश्वास से चलना A है। believer is important that he walks with responsibility. एक विश्वासी जो है एक जिम्मेदारी से चलना चाहिए। That's how God created you and me. और उसीलिए परमेश्वर ने हम सबका रचना की है। Genesis 2:3, the third one, he says he rested him from work. और जो है उस तीसरी बात जो है परमेश्वर ने उसे काम से आराम He दिया didn't tell him to work 7 days, be a workaholic. और जैसे कि 7 दिन काम करने नहीं बोला गया I like that, isn't it? That God gave him a rest. और परमेश्वर ने उसे आराम दिया। Now, for some it could be Sunday, for some it could be Monday, for some it could be Tuesday, but we need to keep one day as rest as और believers. किसी के लिए जो है सोमवार मंगलवार या कोई भी दिन, लेकिन हमें 7 दिन में एक दिन आराम का दिन रखना ही है। Okay, Monday is my rest day mostly. और पास्टर किशोर का जो है सोमवार का आराम का Okay, दिन है sometimes it's on a Saturday. और कई बार जो है But I make sure that शनिवार there's one day only for me. I'm not doing anything else, but I'm just resting in the Lord. लेकिन मैं खातरी कर लेता हूँ कि एक दिन सिर्फ मेरे लिए है और वो परमेश्वर में मैं आराम करता हूँ। That's amazing. अद्भुत है। Like imagine there was no Sunday. और सोचिए अगर सिर्फ इतवार नहीं रहता तो Imagine how our life would be. सोचिए फिर हमारा जीवन कैसा रहता था। Machine, very true, Newton. It will be a machine. और हम एक मशीन की तरह हो जाते Like we'll थे go round and round. और जैसे कि हम No, round and round. और सिर्फ एकदम No, round and घूमते round. भी रहते थे सिर्फ
round and round. सिर्फ घूमते रहते थे। What happens when I go round and round? क्या होते जब ऐसा राउंड राउंड जाते तो? What happens when I'm going round and क्या round? होते देखिए देखिए क्या What होते? happens when I go round and क्या round? होते जैसे कि मैं घूम रहा हूँ सिर्फ, Then I can't move anymore further. फिर बाद में मैं किधर और जगह I'm नहीं ले breaking the सकता। mics so some of you can buy new ones. That is amazing, और isn't ये it? अद्भुत है ना? This is what a lot of people live here और on the earth. इस तरह बहुत से लोग इस तरह जीते Okay, हैं। they're working, they're working, they're working. God has given us rest. और जो है वो काम कर रहे लेकिन परमेश्वर ने हमें आराम दिए। Like one day, God told Adam, I created you, I gave you responsibility, I also give you rest. और परमेश्वर ने जो है हमें बनाया और हमें जिम्मेदार दिया है, लेकिन हमें आराम भी दिया है परमेश्वर ने। amazing. अद्भुत है। And Genesis 2:18. और Fourth one. और जो है उत्पत्ति का 2:18 चौथे बात। It is not God for man, it's not good for man to be alone. और जो है ये अच्छी बात नहीं कि एक मनुष्य जो है आदम अकेले रहे। Remember, God not only made us like to worship Him, to be responsible and to take rest, He also made us very relational. और जो है परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर ने न सिर्फ हमें बनाया जिम्मेदार या फिर उसकी स्तुति आराधना करना, आराम करना, और परमेश्वर चाहते कि हम उससे रिश्ते भी रखें। You know, God has made us relational with each other. और परमेश्वर ने जो है रिश्ता बनाया एक दूसरे से। Like that's why we come into church. और इसीलिए हम चर्च में आते हैं। Okay, we are not coming to church so to have something, but it's a relational church. और जो है हम चर्च में दूसरा कोई काम के लिए नहीं आते, लेकिन एक रिश्ता के Like लिए God आते हैं। made us relational. और कि परमेश्वर ने ये रिश्ते के He लिए बनाया। didn't make us as like a lone rangers. और ऐसे कि अकेले रहने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। Like some people don't even like know that they even exist. और कुछ लोगों को मालूम नहीं कि वो जो है इस दुनिया में रहते They don't even call that they exist. और वो ऐसा अपने आप को वो बोलते You know, नहीं I कि वो just है। call them, do you exist? और मैं बोलता हूँ कि क्या तुम हो Are you क्या? on this earth? क्या आप इस दुनिया में हो क्या? That's amazing. अद्भुत है। But God has made us relational. लेकिन परमेश्वर ने रिश्ते तय किए Pooja was हैं। telling on the 24th night, she was saying, Pastor, I just forgot, I just enjoyed being in the body of और Christ. जो ये पूजा बोल रही थी कि 24 तारीख को कि मैं जो है सब कुछ भूल गई, मैं परमेश्वर के देह में रहकर एकदम That's what मजे में happened. हूँ। We didn't put the mask, we didn't put anything, we just forgot. और जो है हम कोई मास्क नहीं पहने, कुछ नहीं, हम सब भूल गए Like God made us relational. कि परमेश्वर ने एक रिश्ते तय किए। And this is important. ये महत्वपूर्ण This is who I am. है। और यही मैं हूँ, Understood? This is who I am. और यही मैं हूँ, This is my purpose on this earth. और यही मकसद है मेरा इस दुनिया में। The second question, दूसरी सवाल, who is my boss? कौन है मेरा मालिक? No, it's a very important question, isn't बहुत it? ही महत्वपूर्ण सवाल Who is है। your boss? कौन है आपका मालिक? Like if you are working with somebody, you know who is your boss. और आप किसी के पास काम कर रहे हो तो आपको मालूम है आपका मालिक कौन है। But somebody created you, who is your boss? और किसी ने तो आपको बनाया, तो आपका मालिक कौन If है? God is my God, then I need to able to connect with Him daily. अगर परमेश्वर मेरा परमेश्वर है तो मुझे रोज उसके साथ If He is जुड़ना my है। boss, I need to communicate. Imagine not talking to your boss daily. अगर कोई मेरा मालिक है, सोचिए अगर मैं उससे रोज बात नहीं करता हूँ He'll तो throw you out of your job. वो जो है काम से निकाल देगा। But God doesn't do that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते But we are created. We know Christ is my boss. I want to communicate with Him. कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरा मालिक I है और want मैं to ये learn काम the करना है। instructions. When I was working, I would every morning we meet our boss. We'd have a meeting with our bosses. और जैसे कि मैं काम करता था पहले, तो मैं रोज जो है ना बॉस से मिलता था And he would tell us what we should do for the day. और वो बोलता था कि इस दिन में क्या काम करना You है। know, sometimes as believers we forget who's our boss. We don't even ask him. और विश्वासी होने के नाते कई बार हम भूल जाते हैं, हम अपने मालिक को भूल कर क्या पूछना है You वो know, we भूल don't जाते हैं। ask God, what should I do? और परमेश्वर क्या कर रहे हैं ये भी भूल Should I जाते हैं। take up this job? Should I start this business? Should I start a business with an unsaved person? These are the important questions I need to check with my boss. कि ये जो परमेश्वर को हम पूछना भूल जाते हैं कि परमेश्वर ये अविश्वासी है, उसके साथ जो है मैं कारोबार शुरू करूं क्या मैं No, ये these काम are very कर लूं क्या? important questions we need to ask. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है There जो are many पूछने की। things I need to ask. ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पूछने हैं। And boss says, yes, this is good, go ahead. और मालिक बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छा है, तो हम आगे ही बढ़ो। I want to illustrate this point through a story that we just read in the book of Samuel. और जो है मैं जो है सैमुएल का किताब से जो है मैं जुड़ना Are चाहता you हूँ इस with बात me? को। Are you enjoying the message so far? क्या आप संदेश का मजा ले Okay, रहे हो? stay connected. जागते रहिए आप। Okay, Hannah prayed.
और हैना ने प्रार्थना की Okay, Hannah prayed and God answered the prayer. और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। Okay, there was a couple in our church, Sanjeev and Reshma. और संजीव और रेशमा ने Okay, they हमारे used to चर्च come में to थे our church before the lockdown. और लॉकडाउन से पहले वो हमारे चर्च में आते थे Okay, but they didn't have children for a long time. और बहुत सालों से उनको बच्चे नहीं थे Okay, they came to our home and we prayed also, and many of our church people at the prayer times we prayed. और जो है वो पाशी किशोर के घर में है उन्होंने भी प्रार्थना की बहुत सारे चर्च के लोगों ने भी Okay, प्रार्थना yesterday की he called me. He's in Gujarat right now. और संजीव और रेशमा गुजरात में है, वो कल Okay, फोन किए he पास्टर said, को Pastor, my wife delivered a baby boy. और वो बोली कि That's amazing. वो बोली कि हमें जो है लड़का पैदा हुआ है And he was saying, like, we went to every doctor. और जो है हम सारे बहुत सारे डॉक्टर के पास गए But थे last 9 months, my wife is just at home. She couldn't even visit any doctor. और जो है पिछले 9 महीने से देखा जाए तो कोई भी डॉक्टर को हम मिल नहीं सके वो घर में थी Okay, like baby is formed in her womb. और जो है बच्चे जो है कोख में पैदा Like हुए। he couldn't glory on anything. He couldn't glory on God. Like he couldn't glory on not God. I mean to say he couldn't glory on any doctor. But he said it's God who formed that baby. वो सिर्फ और सिर्फ ये जोड़े जो है परमेश्वर को महिमा दिए और कोई भी महिमा जो है डॉक्टर या And they किसी को will be नहीं back and they will give the testimony of what God has done. और वो लोग वापस आएंगे और वो परमेश्वर के बारे में बोलेंगे So Hannah prayed and she knew why God created her. और जो है सॉरी Hannah prayed for a child. और हैना ने जो है बच्चे के लिए प्रार्थना की थी And she redirected her life to, she gave Samuel to she gave Samuel to God. और फिर हैना ने जो है परमेश्वर को जो है सैमुएल को दे दिया And that's amazing, isn't it? अद्भुत है Like she knew that Samuel was a gift from God. और उसे मालूम था कि परमेश्वर से वो तोहफा है Okay, सैमुएल children are a gift from God. और जो बच्चे जो है परमेश्वर से And we वरदान give it है to God to lead their lives. और हम परमेश्वर को वो सौंप देते हैं ताकि उसका जीवन वो चलाए And as Samuel was in the temple, और जैसे कि सैमुएल जब मंदिर में था okay, one night he heard a voice. और एक रात को उसको आवाज सुनाई दी Remember, he's a young believer. और बहुत ही He didn't recognize the voice of God. और उसे जो है परमेश्वर का आवाज He runs to पहचाना the नहीं priest and says, "Priest, did you call me?" और जो है वो जो इले के पास भागा कि क्या आपने बुलाया है क्या Like it happened thrice. और ये 3 बार ऐसे ही हुआ And then finally Eli says, "It is God speaking to you." और वो तीसरी बार वो याजक बोले कि ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है And go and listen to him. और जाकर सुनो उससे And it's amazing. अद्भुत है Like God says the same thing to you and me. और परमेश्वर भी उसी तरह When we are मेरे को new और आपको बोल believers, we रहे are हैं। not able to recognize the voice of God. और जब नए विश्वासी रहते तो हम भी आवाज That's परमेश्वर why नहीं God has देते given you pastors और इसीलिए परमेश्वर ने पास्टर to दिए guide you and lead you. ताकि परमेश्वर But as you मार्गदर्शन grow, दे जैसे कि हम बढ़ते जाते विश्वास में you know what? We learn to hear the voice of God. फिर हम जो है परमेश्वर का आवाज सुनना And पहचान that's what लेते हैं happened to Samuel. और उसी तरह सैमुएल के साथ भी You know, हुआ। and as a pastor, my responsibility. और जैसे कि पास्टर होने के नाते मेरा जिम्मेदारी ये है Are you listening? सुन रहे ना आप सब Okay, my और responsibility जो पास्टर का जिम्मेदारी ये है that you would learn to listen to the voice of God. कि आप जो है परमेश्वर का आवाज सुनना That's समझ my जाए। responsibility. और ये मेरी That's why I जिम्मेदारी है come Sunday after Sunday to preach the message. और इसीलिए मैं हर इतवार के बाद आते ही My purpose to ensure my people listen to God. मेरा मकसद ये है कि मेरे लोग जो है परमेश्वर का आवाज Like a सुनना pastor could suggest people, कि पास्टर जो है लोगों को सुझाव दे सकते but हैं they cannot make decisions for them. लेकिन जो है वो फैसले नहीं कर सकते लोगों के They लिए need to be led by God. और उसे जो है परमेश्वर अगुवाई Can I करते हैं repeat that? क्या मैं वापस बोलूं When एक people बार? come and ask me what to do, और लोग आकर जब पूछते हैं कि पास्टर क्या करूं I would just give them suggestions और मैं उनको सुझाव देता and say, हूं I will pray for you. और मैं बोलता हूं कि आपके लिए मैं But प्रार्थना you करूं are a believer priest. लेकिन आप जो है एक याजक विश्वासी हो Okay, God speaks to you through the word of God. कि परमेश्वर आपसे परमेश्वर के वचन से बात And you need to make those और decisions. आपको वो फैसला करना है Don't be a believer who constantly telling believers what they should do. और ऐसा विश्वासी नहीं बनना है कि हमें दूसरे विश्वासी को बोलते रहना चाहिए No, we ये will करना है, never वो tell करना है। people what they should do. और हम कभी लोगों को नहीं बोलते कि That's ये what our करना है। pastor taught us all these years. और यही हमारे पास्टर भी हमें इतने साल You पढ़े know, I will है। say, I will pray for you, और मैं ये बोलूंगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा and God will lead you. कि परमेश्वर आपको अगुवाई करे Like the funniest thing today in the world is, even in the church. और जो है मजाक की बात ये है कि दुनिया में चर्च में भी Okay, people want pastors to make their decisions for others. और लोग चाहते हैं कि पास्टर उनके जीवन के लिए फैसले करें Or other people make decisions for life. या फिर दूसरे लोग उनके जीवन के लिए फैसला So that करें they could blame them when things go wrong. ताकि
तो उनको ब्लेम करें जब चीजें गलत हो जाए उनकी No, जीवन that's very important. Samuel, like Eli said, go to God. में। और ईलाई ने बोले कि सीधा परमेश्वर के पास And जाओ। here is a man of God says, you go to God and he will speak to you and say, I am Samuel, I am ready to listen to you. और यहाँ पर परमेश्वर का व्यक्ति बोल रहा है मैं सैमुअल हूँ, तुम परमेश्वर तुमसे मेरे से बात Isn't that a good principle? है ना, इस अच्छा सिद्धांत। Okay, we hear from God. और हम जो परमेश्वर से सुनते Say हैं, to your neighbor, हम पड़ोसी को बोलते I will हैं not listen to you. और मैं आपसे नहीं I will सुनूंगा, listen to God. मैं परमेश्वर से सुनूंगा। I don't hear all your wisdom of this world. और मैं इस दुनिया का जो है जो भी I know you are very sophisticated, you are very educated, but I have a God bigger than that. और मुझे मालूम है आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन उससे बढ़कर मेरा परमेश्वर है। I have a God and I could listen to him. और मेरे पास ऐसा परमेश्वर है, मैं उसका सुन सकता हूँ। That's why this series is very important. और इसीलिए ये संदेश का श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। No, and it's because what I listen, I'm going to end up making those decisions. क्योंकि क्या मैं सुनता हूँ उसके बाद जो है मैं फैसला करना Some of पड़ता these decisions may have eternal impact. और कुछ फैसले जो है उसके ऊपर आनंद काल का छवि छोड़ते हैं। Some decisions maybe that you make would be great, और कुछ फैसले जो आप करते हो वो बहुत ही बड़ा like रहेगा। going to Bible school, going to a mission field. और जैसे कि जाना बाइबल स्कूल में, मिशन फील्ड में जाना, Whatever decision we make, और जो भी हम फैसले करते हैं it is important ये महत्वपूर्ण है that I would be that believer कि हम ऐसा विश्वासी बने who hears God's voice वो जो परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, on a regular basis. तो हमेशा निरंतर सुनते रहते हैं। I remember many times और मुझे याद है कई बार, I made those mistakes in my life और मेरे जीवन में वो गलती कर चुका हूँ मैं। impatiently. और जैसे कि वो मुझे कोई भी जल्दबाजी में मैं No, नहीं किया। never make decisions like in hurry. जल्दबाजी में कभी भी फैसले मत करो Okay, just wait upon God और परमेश्वर के ऊपर इंतजार करो, because decisions are very important. क्योंकि ये जो फैसले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, I just put down 6 ways that we can hear the voice of God. और 6 तरीके से मैंने लिखा है कि किस तरह हम परमेश्वर का Okay, are you आवाज ready? सुन आप Okay, सब 5 more तैयार? minutes. Quickly, we go to the 6 points. और 5 मिनट में 6 पॉइंट। Okay, number 1. पहली बात, Okay, have a daily time with God. और हमेशा जो है परमेश्वर के साथ समय बिताइए। Okay, this is very important. महत्वपूर्ण बात है ये। Develop a discipline of meeting God every morning. और जो है ऐसा अपने आप को सशक्त बनाए कि हर दिन परमेश्वर से आपका मुलाकात हो। Like say to God, I am going to discipline my life. कि बोलिए कि मैं अपने जीवन को व्यस्त में Before I meet any man, I would meet God. कोई Yes, say amen to that. कोई भी मनुष्य से मिलने से पहले So मैं easy परमेश्वर to को we मिलूंगा। want to meet man. तो कोई बहुत आसान है कि मैं कोई भी पुरुष से मिलूं। I want to meet God before man. मैं पहले परमेश्वर से How कोई भी about, how about व्यक्ति this से being your resolution? और क्यों ना इस तरह मेरा इरादा हो इस दुनिया Like a daily, I'm going to meet God every कि morning. हर दिन जो है मैं फैसला करूंगा No, परमेश्वर I would read the word prayerfully, और मैं जो है परमेश्वर का वचन प्रार्थना करके करूंगा asking God to show what He wants me to change in my life. कि परमेश्वर से पूछूंगा कि क्या बदल करना चाहते हो मेरे जीवन Not में। only that, I just not reading in the morning when everybody are running around. और न सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं वो वक्त मैं बाइबल पढ़ूंगा जब मेरे घर में सब घूम रहे But हैं। in quietness, God speaks to us. जो शांतता में जो है परमेश्वर हमसे बात Like करता my है। wife, I often take her illustration not to like no make her high, but like it's important when she gets up at 4 o'clock to just be alone with God. और जैसे कि उनके पत्नी के बारे में वो इसलिए नहीं बोल रहे, वो एक प्रिंसिपल के हिसाब से बोल रहे कि वो सुबह 4 बजे उठते I know Chandra, we traveled many times. He would get up at 4 o'clock to pray. और जैसे कि मैं भी पास्टर के साथ यात्रा में रहता था, वो मैं 4 बजे उठता था प्रार्थना That's amazing because I want in quietness God speaks to me. कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर You know what? That takes शांतता में बात करता है। discipline. तो इसके लिए व्यवस्था रहती है Okay, can I say that discipline? डिसिप्लिन रखती है इसके Discipline लिए। to get up early. और ये जो है जल्दी सुबह Because उठना, my decisions are very important in और my life. क्योंकि लिए मेरे फैसले पर में बहुत ही महत्वपूर्ण Number है। 2, okay, memorize His word. और दूसरी बात जो है परमेश्वर का वचन का मनन Okay, करना, have a habit of memorizing. और जो है उसे बाहर करना। ये Okay, याद people रखिए। memorize phone numbers, PAN numbers, Aadhaar numbers. और लोग जो है फोन नंबर, पैन नंबर ये सब जो है मेमोराइज करते हैं। Okay, how about memorizing the word of God? और क्यों ना हम परमेश्वर का वचन याद रखते Like some of the ladies memorize the recipes. और जो है कुछ औरत लोग जो रेसिपी याद कर लेते They हैं don't have to look at the book every time they cook. और रोज जो है बुक में भी देखने की जरूरत नहीं, रोज How about memorizing God's word? क्यों ना हम परमेश्वर का वचन याद करें। Like it's amazing. ये अद्भुत है। Like having the word as a memory. Like now I'm meditating. Take a verse every morning and think about it throughout the year. Like
the buffaloes chew the food throughout the day. और जैसे कि एक वचन लेकर जो है रोज पूरे दिन जो है मैं उसे मनन करना, जैसे कि एक बफेलो जो है वो जब घास खाती है रोज वो चबाती जाती है। Okay, thirdly, coming to church and Bible college, every place that I can hear God's word. तीसरी बात, जैसे कि मैं चर्च में आता हूँ, बाइबल कॉलेज में, उधर परमेश्वर का वचन सुनता Like हूँ। how about challenging yourself to go for extra mile this year? कि क्यों ना ये साल मैं अपने आप को चुनौती दूं कि और एक नया Like another कदम लूं, class, another midweek service. और एक क्लास और एक सभा, I don't want to contain myself into one Sunday. और मैं अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता हूँ सिर्फ एक इतवार Do you के know लिए। that devil works 24/7? और क्या आपको मालूम है शैतान जो है 24 He घंटे is the only one who doesn't take rest. और वही एक ऐसा है कि वो कभी आराम नहीं लेते, But believers take too long rest. और लेकिन विश्वासी लोग बहुत सारा आराम ले लेते हैं। Okay, and it's amazing. Like I want to be in the church. और कि मुझे चर्च में रहना Can है। I say something like if I don't have the word, when the trials come, your life will be कि destroyed. जब मेरे पास वचन नहीं है तो जो परीक्षा आएगी तो मेरा जीवन जो है Like we बर्बाद have हो जाएगी। opportunity to do online classes. कि हमारे पास ऐसा मौका था कि हम ऑनलाइन क्लास कर सकते थे, Okay, and God is amazing. कि परमेश्वर अद्भुत है। Like Pastor Shala recently said, कि पास्टर शैला अभी बोले I come to church with an expectation from God. कि मैं चर्च में इसलिए आता हूँ कि परमेश्वर से उम्मीद लगा Okay, I don't come to just meet people. कि मैं सिर्फ लोगों से मिलने के I लिए come आता that God would speak to me. हूँ। मैं इसलिए आता हूँ ताकि परमेश्वर मुझसे बात If I करे। don't come with an expectation, he said, I'm just coming for a social gathering. अगर मैं वो उम्मीद लगा कर नहीं आता हूँ चर्च में तो मैं ऐसे ही सोशल गैदरिंग में आ रहा You हूँ, can go for society meetings. और फिर आप सोसाइटी मीटिंग में जा सकते हो। Okay, we come for an expectation to hear from God. कि हम उम्मीद लगा कि I come परमेश्वर every से मिलने Sunday आते to hear from God. हैं। कि मैं हर सुबह जो है संडे मैं परमेश्वर से You know, सुनने के I लिए आता come हूँ। on Thursday on Bible college, wherever opportunities that you get. It is like even sometimes traveling with me on the car, we go out for outreaches, we talk about God's word. कि मैं जहाँ कहीं भी वो बाइबल कॉलेज आउटरीच जहाँ कहीं भी मैं परमेश्वर से उम्मीद लगा कर आता हूँ कि वो Like मुझसे the बात woman करे। who was sick for 18 years, she came to synagogue every week. कि जो औरत जो 18 साल से बीमार थी वो हर दिन जो है She had an कलीसिया में आती थी, expectation from God. क्योंकि उसका उम्मीद था परमेश्वर And one से day Jesus walked in and healed her. कि एक दिन परमेश्वर आए और उसे चंगाई दी। Fourthly, surround yourself with like-minded friends. चौथी बात, जो अपने आप को ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रखिए जो परमेश्वर का Very वचन से important. रखते हैं। Friendships are very important. दोस्ती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Like friendships, like your friends should be somebody who shares your faith, और जो ऐसे दोस्ती ऐसा जो आप वो उनका विश्वास और आपका who विश्वास- shares your values. वो आपकी कदर करे। He is not somebody or she is somebody who compromises in one area and he says okay with another वो area. ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए कि एक जीवन के क्षेत्र में बराबर नहीं, एक जीवन के क्षेत्र में Okay, I बराबर। remember a couple came to me and my wife few years back. और जो है मुझे याद है एक जोड़े जो है हमारे पास Amazing आए, couple. बहुत ही अच्छे जोड़े हैं। Okay, the problem is both of them go to two different churches. और तकलीफ ये है कि वो जोड़े जो है अलग अलग चर्च में जाते थे, And they would come back and there was a fight every night. और जब वापस आते थे तो हर दिन रात को जो है वो उनके बीच में झगड़ा होता था। And they came us to help. This is what happening. Otherwise, we don't have a problem. When I come back to my home, I will talk about my church. When he comes back, he talks about our church. And there was a fight because of that. और जैसे कि वो लोग आए हमसे बात करने, वो बोले कि अब कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जब रात को आते कलीसिया से तो वो अपने चर्च के बारे में बोलते यहाँ पर So या I अपने चर्च के बारे suggested में। them. तो मैं उन्हें उनको सुझाव दी You all both should decide to go to one church. और आप दोनों को ये फैसला करना है कि आपको एक चर्च में जाना है, Because you need to hear one pulpit. क्योंकि आपको एक पुलपिट से ही आपको सुनना है, That's when the things would go better. तब जो है चीजें जो है By the बेहतर way, 2 होगी। years later, they're doing great today. और अभी 2 साल हो Wife गए, attends with her husband. और जो है 2 साल हो गए जो पत्नी जो है पति के साथ जाती है वो, Like-minded is very और important. एक साथ You cannot share a vision of your pastor if you are in different pulpits. अगर आप जो है पास्टर का जो है दर्शन तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते हो जब तक आप अलग अलग पुलपिट से सुन You रहे need to decide where is. हो। आपको जो है फैसला करना है Jesus कहाँ पर said, जाना है। like, choose your master. यीशु ने बोला अपने स्वामी को चुनो। So surround yourself with like-minded people. तो अपने आप के ऐसे सोचने वाले के साथ आप रहो। Okay, don't just call anybody friend, even in the church. अपने चर्च में भी हो सकते कोई भी ऐसे ही लोग No, like you need to decide, is that man or woman walking with God? कि आपको जो है चुन लेना है कि वो व्यक्ति Or परमेश्वर is के साथ just रहकर- like just talking but without the content of God's word? या फिर वो सिर्फ
वचन के बगैर ही ऐसे ही बात कर रहे हैं And कभी भी fifthly, देखते हैं। set a time. और पांचवी बात ये अपने आप को एक वक्त रखो, Okay, maybe once in a month. लेकिन हो सकता है एक महीने में एक बार, And set aside and say, evaluate your life. और अपने जीवन को जो है पूरा What am I doing? और मैं क्या कर रहा हूँ, Where is something that is going wrong in my life? कहाँ पर ऐसा जीवन का क्षेत्र है जहाँ पर मैं गलत हुआ। And this is important. ये महत्वपूर्ण है। And like we do the health checkups. और जैसे कि हम अपना जो है हेल्थ चेकअप We करते हैं, need to also do our spiritual health और checkups. हमारा जो आत्मिक चेकअप भी हमें करना है, This is very important. महत्वपूर्ण है। And ask God, what are some areas I need और to परमेश्वर readjust my life? और परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर कौन से जीवन का क्षेत्र है जहाँ पर मैं वापस सही हो सकता हूँ। And finally, also take like once in a year, take a break. और आखिर में साल में एक बार छुट्टी लीजिए, Okay, don't keep the breaks are too busy that you're not listening to God. कि ऐसा भी ज्यादा छुट्टी मत लीजिए कि आप Yeah, परमेश्वर you से take a दूर हो chutti, but don't like crowd that break into like busy day. जाए। और जैसे कि sorry, Like I'm going on a holiday, I'm just going sightseeing, and from morning to night I'm tired when I come back. कि ऐसा छुट्टी मत लीजिए कि जाकर सिर्फ घूमते रहे, वहाँ पर आप थक जाए पूरे But you दिन need में। to take a break where I'm ready to listen to what God is speaking. लेकिन आपको ऐसा छुट्टी लेना चाहिए कि आप तैयार रहे कि Now, when me and परमेश्वर my wife go for a break, we don't want to do anything else. We saw enough of sightseeing, but we just wanted to just enjoy God and just like of course we go out to see things, but we wanted to have more quality time with God. कि जब पास्टर और उनके पत्नी जब वो छुट्टी में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने जाते हैं, और लेकिन उनका एक ही उम्मीद रहता है कि वो Okay, परमेश्वर से बात करें। last year we went for a break and we drove down, and it was an amazing time. और पिछले जो है वो छुट्टी में गए थे, इतने लंबे First सफर time पे I गए। drove 3,000 kilometers on my car. पहली बार जो है 3000 I किलोमीटर broke all the records. और सब रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। I want to just check whether my back is doing okay. और मैं वापस चेक करना चाहता था मेरा बैग But बराबर amazing, है। and we came back and we are so refreshed. और जब मैं आया एक छुट्टी से, वाकई परमेश्वर And ने we ताजा कर have दिया, changed everything. Many things in our life was going like this, and God spoke to us. और बहुत सारे जीवन के क्षेत्र में थोड़ा इधर उधर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने सब सही कर दिया फिर। And we changed our schedules, the way we work, our kids, everything. और जो है हमने अपने सब कुछ वापस चीजें जो है सही जगह पर रखा, परमेश्वर ने जिस तरह बोला। Okay, in closing, बंद करने से पहले, okay, God sees eternal consequences in every decision I make. परमेश्वर जो है अनंत काल का वक्त देखते हैं जब भी जो भी हम फैसले When we करते think हैं। about the father of our faith, Abraham, और जब हम पिता अब्राहम जो हमारे विश्वास का पिता है उसके बारे में सोचते हैं, okay, we think about two things. दो चीजें अब्राहम के बारे में सोचते Number हैं। one, he made one good decision. पहली बात तो ये कि उसने एक पहला अच्छा फैसला He किया था। left the Ur of Chaldees. उसने जो है जो भी वो गांव था वो छोड़ दी उर ऑफ Okay, कैलेब, and followed God by faith. और वो जो है परमेश्वर के साथ विश्वास से चला। And today we call him the father of faith for that. आज हम उसके लिए जो है 4,000 years, 6,000 years later, we talk him as a father of our और faith. आज 6000 साल के बाद भी हम उसको विश्वास का पिता करके बुलाते हैं। In the same way, the second decision that Abraham made, we still also talk about. और दूसरा फैसला भी वो जो उसने किया उसके बारे में भी आज भी बात When he करते हैं। didn't go to God और जब वो परमेश्वर के पास नहीं गए, and he produced Ishmael, Hagar. और जो है उसके वजह से इस दुनिया में इश्माएल है And today हेगर that से। Ishmael is still a problem in the world today. और आज जो है इश्माएल आज भी तकलीफ है दुनिया के लिए, Because he was impatient upon God's promises. क्योंकि वो नहीं रुका था परमेश्वर के वायदे के Like ऊपर। if you are impatient and you are making decisions in your life, अगर आप वाकई जल्दबाज में आप फैसला कर रहे हो परमेश्वर बोल के भी, I'm going to tell you, it will impact eternally. और मैं बोलना चाहता हूँ ये अनंत काल का उसके ऊपर असर पड़ेगा। That's what happened to Abraham's life. और अब्राहम के जीवन में भी We यही know हुआ। by these two decisions, Abraham. और हमें मालूम है ये दो फैसले से अब्राहम I का, think now, including me, all of us make mistakes. और मैं खुद को भी बोलता हूँ कि हम सब I गलती as a करते हैं। pastor, I'm going to stand before you and tell there are times that I made that impatient decisions. पास्टर होने के रहते हैं वो भी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी जो है जल्दबाजी में बहुत सारे No, I फैसले किए। regret for those things. मैं उसका पछतावा कर रहा हूँ, But what's amazing it? लेकिन अद्भुत बात ये Like है God is still good. कि परमेश्वर अब भी भला है। No, He still changes our lives. वो अब भी हमारा जीवन बदल सकते हैं। No, we don't have to regret what has happened तो हमें ऐसा पछतावा नहीं करना चाहिए कि क्या हुआ है, because we have a faithful God. क्योंकि हमारे पास विश्वास योग्य No, परमेश्वर like है। Abraham didn't stop walking with God. अब्राहम ने जो है परमेश्वर के साथ चलना बंद नहीं He किया, went walked with God. और वो चलता ही रहा Like परमेश्वर we के can साथ। rejoice for the times we made good decisions. और जैसे कि हम जो है वो खुशी बनाते हैं जब उसने अच्छा फैसला भी How किया। about
taking responsible when you made bad decisions. और जैसे कि क्यों ना हम उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए जब हम You know, गलत like फैसला when you करते हैं make mess up, be responsible. Yes, I messed up. कि आप गड़बड़ी किए तो उसका जिम्मेदारी भी लीजिए कि That's आपने why गड़बड़ी की it's so important to hear the voice of God. और इसीलिए वे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर का आवाज सुने Like this year, like make a resolution. कि ये साल जो है हमें वाकई Think about the फैसला 6 करने points I shared. और 6 ये पॉइंट्स के बारे में Okay, सोचिए listening to God every morning. और हर दिन सुबह Okay, let me go परमेश्वर से quickly. सुनिए Okay, what are the 6 things? और Okay, 6 बातें वापस बोलना चाहता हूँ okay, just quickly. These are very important. महत्वपूर्ण बातें Okay, ये daily time with God. पहला तो परमेश्वर के साथ रोज समय बिताना Memorize His word every day. और उसका वचन याद करना No, रोज I come to church with an expectation और to मैं- hear God's word. और मैं चर्च में आता हूँ परमेश्वर से उम्मीद लगाए हुए कि Okay, उसका number वचन 4. सुने। चौथी बात Okay, surround yourself with like-minded friends. और अपने आप को जो है ऐसे इर्द गिर्द रखना कि अपने जैसे सोचना परमेश्वर के Okay, जैसे number 5, set a time for yourself to have a spiritual health checkup. और जो है ऐसा वक्त चुनिए कि अपना आत्मिक चेकअप हो सके And sixthly, have annual retreats. और जैसे कि 6वीं बात कि हमें साल में छुट्टी By the way, देना no है। money is not an excuse. और जैसे कि नहीं पैसा होना ऐसा कोई भी Okay, you can keep 500 aside every month and make a break. और आप जो है Go for a retreat. 500 रुपया हर महीने रखकर जो है आप छुट्टी में जा सकते हो Isn't that good? है ना अच्छी No, बात like let's not give all the excuses. आप पूरा बहाना नहीं बोल सकते आप। Okay, but I want to trust God और हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा because I करना है। want to refresh my life. और मुझे मेरा I want to जीवन hear जो the ताजा voice करना of God. है और मुझे परमेश्वर का आवाज सुनना है। Okay, let's bow our heads and close our आइए। worship team. Can you just come up? Okay, आइए let's हम अपना come up, सर okay. झुकाएंगे Okay, come आंखें on, we'll बंद do करें। one song and then we'll close. Okay, Father, we just thank you today. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। Okay, there's anybody here who never believed in Jesus? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के पर विश्वास I नहीं want to किया tell you, God loves you. मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे He प्रेम died for करते your हैं sins वो आपके पापों के लिए मर and He गए rose again. वो फिर से जिंदा He हुए said, whoever believes वो upon Him बोलते हैं कि कोई भी सिर्फ विश्वास will करेगा never perish कभी भी नाश नहीं but होगा have eternal life. और उसका आनंद का It's your choice today ये आपका चुनाव है to believe Jesus कि आप वो यीशु मसीह के and पर allow विश्वास करें Jesus to come into your कि life. आप यीशु मसीह को अपने जीवन में इजाजत दीजिए आने के लिए Wherever you are, जहाँ पर भी आप make हो that decision. जो ये फैसला कीजिए God also help us today. और परमेश्वर हमें मदद भी कीजिए Help us with those 6 things that we thought today. और जो 6 चीजें जो हमने आज पढ़ी है पर And we want to draw close to you कि हम आपके और नजदीक आना चाहते हैं so प्रभु that we could hear your voice ताकि हम आपका आवाज सुने and make those decisions और ऐसे फैसले करें प्रभु which are eternal. और जो आनंद काल के लिए In प्रभु Jesus' name. we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आमीन हो लेंगे हम यीशु के संग हो लेंगे हम यीशु के संग जिसने दिया है पापों से मुक्ति धन्य हो उसका नाम जिसने दिया है पापों से मुक्ति धन्य हो उसका नाम मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वो पाएगा जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वो पाएगा हो लेंगे हम यीशु के संग हो लेंगे हम यीशु के संग Lord, we pray especially for this year, O Lord. This year, O Lord, lead us and guide us, O Lord, in everything that we do, O Lord. So that whatever we do, O Lord, that you should get all the glory and honor and praise, O Lord. We pray for all our plans, O Lord. Yes, Lord. We pray, O Lord, for your wisdom, O Lord. Thank you, Lord, for all that you have done in our lives, O Lord. Yes, Lord. Keep us safe, protect us, O Lord, and guide us, O Lord. In Jesus' most precious name we pray. Amen.